फिलहाल रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ रायपुर का। एनआईटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत कर रही हैं। कुमार Gold medal for Bachelor of Technology in Information Technology for the year 2023 goes to Disha Jain. Gold medal for Bachelor of Technology in Metallurgical and Materials Engineering for the year 2023 goes to Prakhar Jadhav. Gold medal for Bachelor of Technology in Mining Engineering for the year 2023 goes to Priyanshu Kumar. Gold medal for Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering for the year 2023 goes to Yash Bansal. Ladies and gentlemen, I'd ask to put your hands together for a big round of applause as the Institute Gold Medal for securing the highest CPI amongst all these undergraduate students also goes to Yash Bansal. Thank you, ma'am. Thank you, all the guests. Please take your seat. I request the guest of honor of the function, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnu Dev sir. I'm sorry. I request Chief Guest the Chairman Board of Governors to please deliver his speech. Today's chief guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, guest of honor, Honorable Governor of Chhattisgarh, Sri Ramen Dekha ji, guest of honor, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vishnudev Sai ji, Honorable Central State Minister Tokhar Sahu ji for Housing and Urban Affairs, Director NIT Raipur, Professor N. Ramana Rao, members of Board of Governors, Senate members, deans, HODs, faculties and staff members, my dear fellow graduates, parents, guardians, press, ladies and gentlemen. Friends, this occasion is a proud and significant moment for all of us. On this occasion, we are immensely delighted to have the presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji as the chief guest. Madam, on behalf of the entire NIT Raipur fraternity, I extend a warm welcome to you and express our heartfelt gratitude for accepting our invitation. Honorable Governor of Chhattisgarh, Honorable Sri Ramen Dekha ji, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vishnudev Sai ji, और सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑनरेबल तोखर साहू जी, इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य अतिथि हमारे लिए अत्यंत विशेष है। 20 जून 1958 में आपका जन्म संथली जनजाति में ऊपरबेड़ा गांव में उड़ीसा में हुआ। हर जर्नी इन रियल सेंस इज़ अ जर्नी फ्रॉम विलेज टू नॉलेज। जब लड़कियां पढ़ती नहीं थी तब आप स्कूल में गई, जब लड़कियां अपना गांव छोड़कर बाहर नहीं जाती थी तब आप शहर में जाकर कॉलेज में पढ़ने गई और गांव की पहली ग्रेजुएट बनी। जब महिलाएं नौकरी नहीं करती थी तब आपने नौकरी भी की। जब महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं जाती थी तब आप पॉलिटिक्स में भी गई। आपने मुश्किलें बहुत सही, बहुत कुछ खोया, परंतु हिम्मत को नहीं खोया। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के मुख्य अतिथि हमारे लिए विशेष है और अत्यंत प्रेरणादायी है। आप
श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में शिक्षक बनी। और फ्रेंड्स, नो सैलरी, इट वाज ऑनररी। सन 2000 से 2009 में आप रायरंगपुर कंस्टिट्यूएंसी ओडिशा से 2 बार एमएलए रही। उड़ीसा प्रदेश की मंत्री भी आप 2 बार रही। आपको उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप 2015 से 21 तक झारखंड की गवर्नर पद पर रही। 25 जुलाई 2022 से आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर। She has visited a number of countries, friends. She has also received honorary doctorate of civil law from the University of Mauritius. Recently, she has visited Algeria, Mauritania, and Malawi in Africa, and it is to be noted that she was honored by awarding the doctorate in political science by Algeria. आपका स्वभाव पैशनेट है और व्यक्तिमत्व मातृ हृदयी है। Education is very close to her heart. She is a spiritual person. I recall her recent visit to Shri Shirdi Sai Baba in Maharashtra. आप मित्रों मेट्रो में गई, स्कूल में भी गई, विद्यार्थियों को पढ़ाया। आपकी सरलता बहुत प्रभावी है। मैं राष्ट्रपति भवन में आपको निमंत्रण देने हेतु मिला, तब भी मैंने आपकी सरलता का अनुभव किया। Friends, she is a true idol and real inspiration for all of us. We are really fortunate to have her with us and receive her guidance and blessings. Once again, I extend a warm welcome to you, Honorable Madam. Dear graduating students, in the outside world, you will always be known as NITians, and I am sure you will cherish the memories of NIT Raipur. You are our ambassadors. Whatever good deeds get done by you will make us feel proud of you. Once again, I congratulate you all. सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। I request the guest of honor of the function, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Vishnu Dev Sai ji, to kindly address the degree recipients. Sir. NIT रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि हमारे देश की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय श्री रामेन डेका जी, अध्यक्ष NIT रायपुर, निदेशक NIT रायपुर, शासी निकाय एवं सीनेट के सदस्यगण, अध्यापकगण, पालकगण, सभी विशिष्टजन एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज का यह दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन है। संस्थान के दीक्षांत समारोह के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। इस मंच पर उपस्थित होकर मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी आज एम्स रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुई। कल वे IIT भिलाई और आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। हम सब माननीय राष्ट्रपति जी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं और नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 दिनों का बहुमूल्य समय इस प्रदेश को दिया है। आज के इस अवसर पर जो छात्र छात्राएं ग्रेजुएट हो रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूं। आज का यह दिन आपके लिए केवल डिग्री हासिल करने का दिन नहीं है, बल्कि आज से आप देश और समाज के लिए अपने ज्ञान और कौशल के साथ अपना योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। NIT रायपुर जैसे उत्कृष्ट संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियरिंग केवल तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि यह समस्या के समाधान का विज्ञान भी है।
आज आप समाज की नई चुनौतियों को हल करने के लिए सक्षम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी गांव और जंगलों में निवास करती है। यह आबादी आज भी कई तरह के अभावों का सामना कर रही है। सुविधा और संपन्नता की दृष्टि से पीछे रह गए इन लोगों के जीवन में आपका ज्ञान और कौशल बदलाव ला सकता है। यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में भी आपका ज्ञान और कौशल राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी के अनुरूप हम सभी लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का संकल्प लिया है। यह संकल्प आप लोगों के योगदान के बिना पूरा नहीं हो सकता। हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए हम लोग भी इसमें बड़े बूस्ट की तैयारी कर रहे हैं। देश और प्रदेश को आप जैसी युवा प्रतिभाओं से बहुत उम्मीदें हैं। आज प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। यह नीति छात्र छात्राओं में ज्ञान के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देती है। हमारी आने वाली पीढ़ी तकनीकी रूप से कुशल और उद्यमिता से भरपूर पीढ़ी होगी। प्रदेश के 160 ITI का भी हम आधुनिकीकरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, हवाई और संचार नेटवर्क का विस्तार बहुत तेजी से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमारे पास युवाओं की बहुत बड़ी टीम होगी जो इस प्रदेश को अपने ज्ञान, कल्पनाशीलता और प्रतिभा से विकास की नई ऊंचाइयों पर स्थापित करने में सक्षम होगी। आज के इस दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएट हो रहे छात्र छात्राओं को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं। सभी अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। केंद्रीय राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय श्री तोखन साहू जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स NIT रायपुर डॉक्टर सुरेश डाबरे जी, निर्देशक डॉक्टर NB रमणा राव जी, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा करके दूसरे चरण में प्रवेश किया है। इस उपलब्धि पर मैं सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर विशिष्ट मान्यता प्राप्त की है। पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। विद्यार्थियों की सफलता में परिवार के प्रोत्साहन तथा प्राध्यापकों के मार्गदर्शन की निर्णायक भूमिका होती है। मैं सभी विद्यार्थियों के परिवारजनों तथा प्राध्यापकों को भी बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, टेक्नोलॉजी का विकास विज्ञान पर निर्भर होता है। इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के बारे में मैं जानकारी बनाए रखना आप सबके लिए सहायक सिद्ध होगा। हाल ही में घोषित किए गए वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों पर 2 वैज्ञानिकों को फिजिक्स के लिए तथा कुल 4 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री के लिए चुना गया है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से लेकर माइक्रो RNA के अन्वेषण तथा प्रोटीन स्ट्रक्चर के प्रिडिक्शन तथा NI के उद्योग पर आधारित ऐसे कार्य साइंस और टेक्नोलॉजी की परंपरागत सीमाओं के ऊपर उठकर ही किया जा सकता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किए गए इन कार्य से अनेक असाध्य बीमारियों के रोकथाम और इलाज के
रास्ते खुलेंगे। यही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मनुष्यों के शारीरिक परिश्रमों को महीनों द्वारा सहायता और विस्तार प्राप्त हुआ, वैसे ही एआई रिवॉल्यूशन से मानसिक क्षेत्र के बड़े बदलाव आएंगे। पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य है। एआई का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक तथा अन्य कई क्षेत्र में गहरा प्रभाव पड़ेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। एआई से जुड़े अनेक क्षेत्रों में हमारे युवा इंजीनियर्स के लिए विकास के नए रास्ता खुलेंगे। हेल्थ केयर के क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थियों को इंटरडिसिप्लिनरी सहयोग के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इसी वर्ष अप्रैल में मुझे टाटा मेमोरियल सेंटर तथा आईआईटी बॉम्बे द्वारा कैंसर के उपचार के लिए देश में विकसित की गई पहली जेनी थेरापी का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। कार-टी सेल नामक ये उपचार विदेशों में विकसित किए गए ऐसे उपचारों की अपेक्षा बहुत कम खर्च में मरीजों के लिए उपलब्ध हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा इस बार का छत्तीसगढ़ प्रवास यहाँ के विद्यार्थियों को समर्पित है। मैं चाहूँगी कि आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के उदाहरण से प्रेरणा लेकर एनआईटी रायपुर के विद्यार्थी और प्राध्यापक, एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के साथ सहयोग की संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। पारस्परिक सहयोग का मेरा ये संदेश मेरी इस बार के प्रवास से जुड़े यहाँ के अन्य तीनों संस्थाओं के लिए भी है। ऐसा सहयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाना चाहिए। स्थानीय शुरुआत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक विस्तार दिया जा सकता है। स्थानीय समस्या का कम खर्च पर समाधान विकसित करना सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव वैश्विक परिवेश को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर का होना चाहिए। साथ ही आपके प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का लाभ स्थानीय जनता को भी मिलना चाहिए। थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, ये नीति कुछ बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा अपनाई जाती है। ये सोच भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के लिए और भी अधिक प्रासंगिक है। प्रिय विद्यार्थियों, डिजिटल इंक्लूजन के क्षेत्रों में हमारे देश की सफलता ने पूरे विश्व समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे देश में ऐसे अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने की संभावनाएं और क्षमताएं विद्यमान हैं। एनआईटी रायपुर जैसे अन्य तकनीकी शिक्षण संस्थान एवं आप सब युवा विद्यार्थियों में ये उत्साह होना चाहिए कि ऐसी संभावनाओं को समझें और उन्हें कार्यरूप प्रदान करें। आपने योगदान का दायरा आप जितना अधिक विस्तृत करेंगे उतना ही अधिक आपका व्यक्तिगत विकास होगा। बड़ी सोच बड़ी आकांक्षाओं को जन्म देती है। बड़ी आकांक्षाएं ही प्रभावशाली यथार्थ का रूप लेती है। कार्य जगत में प्रवेश करने की इस अवसर पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करने हैं तथा अपनी जीवन मूल्य निर्धारित करने हैं। क्या आप केवल अपने व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए
और इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां एनआईटी दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हैं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति महोदया पहुंची हुई हैं। प्रदेश के राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मंच पर मौजूद हैं। ये 14वां दीक्षांत समारोह है एनआईटी का, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति महोदया पहुंची हुई हैं।